you are watching the Savera and I am Shudha. A shocking and horrifying case of violence has surfaced in Gurugram where a 19-year-old student was allegedly brutally assaulted by her live-in boyfriend. The victim is currently admitted to Safdarjung Hospital in Delhi for treatment. According to police, the FIR has been registered against Sibam, a resident of Narela, Delhi. It is alleged that he poured sanitizer on the victim's private parts and set them on fire while recording the act on his phone. The FIR filed on February 19 and 2026 was based on the victim's detailed statement. The victim, originally from Tripura, was pursuing a BSc in biotechnology and living in a PG in Sector 69, Gurugram. She reportedly met Shibam in September 2025. Their relationship later turned into cohabitation under the pretext of marriage. Police said the accused allegedly forced a physical relation and subjected her to repeated acts of violence. According to the FIR, the abuse escalated over time. On February 16, 2026, the accused allegedly attacked the victim brutally. He reported he hit her head with a steel bottle, smashed it against walls and furniture, struck her with an earthen pot and attempted to set her private parts on fire with sanitizer. He also attacked her legs with a knife and threatened that she would never walk or become a mother. Police said the accused also allegedly recorded videos of victim. On the night of February 18, the victim managed to use the accused's phone to call her mother in Bengali, a language the accused did not understand. She told her mother about the assault, who immediately contacted emergency services. Police reached the location and admitted the victim to Sector 10 Government Hospital in Gurugram. Doctors initially declared her unfit to give a statement due to the severity of her injuries. She was later referred to Safdarjung Hospital in Delhi, where she was declared fit and her detailed statement was recorded. The case has been registered at the Badshapur police station under serious sections of the law. Police officials said the accused is being actively searched and that the investigation is ongoing. This incident has raised concerns about the safety of young women in live-in relationships and online connections. Authorities have urged families and citizens to report abuse immediately and remain vigilant. Police have also assured that strict legal action will be taken against the accused. The horrific case has sparked widespread outrage and highlights the need for awareness and stronger protective measures for students and young women living independently. मेरा लड़की बोला मुझे मार डाली कि शिवम नाम का एक लड़का है, ये मुझे मार डाली कि 3 दिन लगातार मुझे 24 घंटा 3 दिन लगातार 24 घंटा मुझे पिटाया, माराया, जलाया, ये बोला। आज मुझे बिल्कुल मार डालेगा ये बोल के गया। तो मेरी कितने समय से शिवम के साथ आपकी लड़की रह रही थी और कहाँ पर, मतलब कैसे कैसे चोट शिवम ने आपकी लड़की को? मेरा लड़की बोला माँ 3 दिन लगातार शिवम एक ही रूम पे मुझे अटक करके रख दिया, लॉक करके रखा, खाना खुना कुछ नहीं दिया, मेरे ऊपर सूसू किया, मेरे लड़की के ऊपर सूसू किया, ये लड़की को सूसू खिलाया, उसको बोला ये सैनिटाइजर दे के प्राइवेट बात दिन में 3 बार जला दिया, 3 दिन लगातार। मेरी लड़की को ऐसे किया, चाकू से भी हमला किया गया। चाकू मेरा लड़की का हाथ और पाँव बांध के चाकू दे के उसको पैर को नीचे काटा और इधर हाथों को ऊपर। मेरा लड़की को इतना काटा 10 इंच और इतना
3 इंच का नीचे दाब दिया, तो इतना आपकी काटा है। लड़की, गुरुग्राम में रह रही थी, क्या पढ़ाई करती थी? ये कैसे मुलाकात हुई थी? ये मेरा लड़की तो त्रिपुरा से इधर आया बायोटेक पढ़ने के लिए गुरुग्राम GD गोयंगा कॉलेज में, और उसको साथ ऑनलाइन में फ्रेंड हो गया। ये मैं उस दिन बोला, तो मेरा लड़की बोला आज मार डालेगा मेरा लड़का शिवम, तुम बचाओ। मैं जल्दी बंसी थाना में फ़ोन किया, बंसी थाना फ़ोन किया, मेरा ये बादशाहपुर थाना को, तो मेरा लड़की को बचाया। क्या शिवम शादी के लिए भी बोला करता था? पहले बोला उसको शादी करेगा, उसको प्यार करता है, ऐसा बोल के उसको ऐसे हाल कर दिया। मेरे लड़की को रेप किया, मेरी लड़की को बहुत ज्यादा पूरा किया मेरे लड़की को। क्या मांग क्या कर रहे हो और कैसी हालत है अभी आपकी? मेरा लड़की का हालत ज्यादा ठीक ही नहीं है, बहुत खराब है उसका हालत। क्या मांग क्या कर रहे हो? ये क्या मैं समझ नहीं गया क्या बोला। देखिए, ये जो मामला था इसमें विक्टिम की फैमिली के द्वारा गुरुग्राम पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि उस लड़की को कहीं पर उसके किसी दोस्त के द्वारा उसकी पिटाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा इस लड़की को रेस्क्यू किया गया था और उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था, जो कि फिलहाल अंडर ट्रीटमेंट है, जिसकी जो स्थिति है वो फिलहाल स्टेबल है। पुलिस के द्वारा इसमें तुरंत ही कार्रवाई करते हुए जो एक्यूज था, जिसका नाम शिवम था, 19 वर्षीय ये व्यक्ति था, इसको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस केस में कंप्लेनेंट की जो रिटन कंप्लेंट थी उसके बेसिस पर जो सेक्शंस, उसमें सीरियस सेक्शंस थी जिसमें रेप के साथ में और अन्य जो सेक्शन थी वो पुलिस के द्वारा लगाई गई है। फिलहाल जो लड़की है वो अंडर ट्रीटमेंट है। एक्यूज जो है उसको गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में लिया गया था। पुलिस रिमांड के बाद उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और कोर्ट के ऑर्डर्स पर उसको जेल भेज दिया गया है। फिलहाल वो जेल में बंद है। मामले की एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। जो विक्टिम है उसकी प्राइवेसी को देखते हुए कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की जा सकती है, परंतु इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया है कि ये दोनों सितंबर 2025 से एक दूसरे के परिचित थे, एक दूसरे को ये अच्छी तरह से जानते थे। और फिलहाल जो केस की सेक्शंस हैं उसमें डॉक्टर्स के द्वारा कुछ ओपिनियन दिए जाने हैं। पुलिस लगातार डॉक्टर्स और फैमिली के संपर्क में है। फैमिली के द्वारा भी उनकी भावनाओं को देखते हुए पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन केस में की जा रही है। डॉक्टर्स का ओपिनियन जो ट्रीटमेंट के बाद में आता है, एक ये लीगल फॉर्मेलिटी होती है जो कानूनी प्रावधान है। तो डॉक्टर्स जो ओपिनियन देंगे उसमें जो भी और जो सेक्शंस आएंगी पुलिस के द्वारा वो भी इस केस में लगाई जाएंगी। इसके अलावा एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि इस केस को गुरुग्राम पुलिस के द्वारा सीरियस तरीके से लेते हुए इसको चिन्हित अपराध में रखा गया है। चिन्हित अपराध बेसिकली एक गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा एक चलाई गई स्कीम है जिसमें केसेस को लगातार मॉनिटर किया जाता है और हर तारीख पर जो विटनेस होते हैं उनकी प्रेजेंस सुनिश्चित की जाती है। जल्द से जल्द ट्रायल पूरा किया जाता है इसमें कोर्ट के द्वारा। पुलिस के द्वारा इस केस को लगातार चिन्हित अपराध में रखा गया है। केस की ट्रायल को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा और कोर्ट में पुलिस की तरफ से एक डिमांड रहेगी कि सख्त से सख्त जो मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा है इस केस में आरोपी को मिले। देखिए, एक्यूज से जो इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है उसमें उसके द्वारा मारपीट की जो घटनाएं हैं उनको अंजाम देना स्वीकार किया गया है। ब्रूटल तरीके से उसके द्वारा विक्टिम की पिटाई की गई थी। डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में फिलहाल विक्टिम है, परिस्थिति उसकी फिलहाल स्टेबल है। डॉक्टर के द्वारा ओपिनियन इसमें दिया जाएगा। जो प्रारंभिक जो MLR में जो चोटें दी गई हैं उसके बेस पर फिलहाल सेक्शंस लगाई गई हैं, सीरियस सेक्शंस हैं जो भी फिलहाल केस में लगी हुई हैं। और ट्रीटमेंट के बाद में जब एट द एंड डॉक्टर अपना ओपिनियन इसमें देगा तो जो बाकी जो सेक्शंस है उस ओपिनियन के बेस पर इस केस में लगाई जाएंगी। देखिए, जो इंसिडेंट जिस प्रकार से हुआ था, जिस प्रकार की कंप्लेंट विक्टिम के द्वारा फाइल की गई थी उसके बेस पर रेप सहित अन्य जो सेक्शंस हैं लगाई गई हैं। जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर के द्वारा ओपिनियन दिया जाता है जो कि एक कानूनी बाध्यता है। उस ओपिनियन के बाद में जो अन्य जो सेक्शंस हैं वो भी केस में लगाई जाएंगी। पुलिस के द्वारा केस को सीरियस तरीके से लिया गया है और जैसे मैंने आपको बताया विक्टिम की फैमिली की जो डिमांड है, कोर्ट में पुलिस लगातार इसकी केस की पैरवी करेगी और गवाहों को जल्द से जल्द प्रेजेंस सुनिश्चित करवा करके और इसकी ट्रायल को जल्द से जल्द खत्म करवाया जाएगा। एक्यूज है 19 वर्षीय व्यक्ति है और दिल्ली के नरेला एरिया का रहने वाला है। गुरुग्राम में ये रहता था। फिलहाल अभी जेल में है और आगे जो केस की जो चार्जशीट है पुलिस के द्वारा जल्द से जल्द है वो कोर्ट में दी जाएगी। Stay tuned with us for more updates. Do like, comment, share and subscribe the channel.